We had started with the production theory of the production. We understood what the production. Production is the creation or the addition of the utilities. A man cannot create a matter, but a man can add the utility to the matter. And that addition or the creation of the utility is called as production. The total six types of the utilities that we know. Then basically the inputs used in the production process are divided into four categories. Inputs used in the production are called as factors of production. Right, we have done with the two types of factors of production. One is the land, which is a free gift of the nature. It includes all those resources which are given by the nature. These are not created by the man. They are primary factors, means they are original in the sense a man cannot create them. Another is a labor. Labor is a human resource used in the production activity. Again, it is a primary factor of production, active factor of production. And labor, right, is I will say perishable in the nature. Then the next is capital. The third factor of production is a capital. Capital as a factor of production. Capital as a factor of production. Okay. What do you mean by capital as a factor of production? Capital are all those inputs which are created by man, right, and used in the production, or they help in the production of goods and services. They are artificial in the nature. Man creates them, right, with the help of the nature, with the help of the land and the labor, and they are put in the production of further goods and services. So all artificial resources, all artificial inputs falls under the category of the capital. So what do you mean by capital? Capital में क्या क्या आता है, right? वो हमें समझना है, लिख लेना. Capital includes all those inputs, right, created by man or human, right, and used in production of goods and services. Goods and services means they are put, पहले उनको हम प्रोड्यूस करेंगे, लाइक कैपिटल गुड्स या कैपिटल को हम प्रोड्यूस करेंगे, and then we will use them in the further production of goods and services. And therefore capital is also called as produced means of production. Therefore they are called as produced means of production. We produce them, which helps us in further production of goods and services. They may be used to produce consumer goods and services, or they may be used to produce capital goods and services. So produced means of production. Means of production. Means the inputs, or means are the uh, things which help you to produce. Means of production. Means capital goods are produced to produce either consumer goods or capital goods. Obviously capital goods must be replaced one or some other day, because capital goods are subject to depreciation. So all those goods which are manufactured, which are created by the man, and which are helpful in the production of goods and services are called as capital. They are also called as produced means of production. इसमें example में आप लिख सकते हो, example, right? You cannot say land and building. Land is a nature's gift. Therefore, it will fall under
your uh, land as a factor of production. But building, yes. Building, plant and machineries, yes. Computers, robots, then uh, your inputs like your raw material, which is consumed, like प्लास्टिक यूज मैन्युफैक्चर किया जाता है विच इज कंज्यूम, राइट. प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं. सो वन कैन टेक दैट इज रॉ मटेरियल. Sugar cane falls under land. It does not falls under capital. Try to understand. Let it be it is a raw material, but it is a nature's gift. So on the contrary, जो नट बोल्ट्स होते हैं जो हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ऑयल हो सकता है, राइट. रिफाइंड ऑयल बोल रहा हूं मैं, राइट. जो क्रूड ऑयल है वो लैंड में आ जाएगा, राइट. सो आप ले सकते हो पावर, इलेक्ट्रिसिटी, राइट. दोज गेट कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन or they help in the production of goods and services. So those raw materials. Then you can say money capital. So these are physical capital: building, plant and machinery, computer, robots, raw material. They are real capital, physical capital, right? But before that, you must have money. Then only you can buy all these things, or you can manufacture all these things, or you can construct building, etc. समझ में आ रहा है? So money capital, money, cash in hand, cash at bank. You may raise funds by issue of shares, debentures, right? You can take loan, borrowed capital. That is in the form of money. And then money capital is converted into real capital. Money capital is not directly used in the production. Money capital is converted into real capital means I buy, right? I buy real capital and which is used in the production of goods and services. So building, plant and machinery, robots, raw material, money. I can take infrastructures available like dams, roads, right? uh, telecommunication services, right? आप और क्या like bridges, telecommunication facilities, internet वगैरह, ठीक है. All these are capital. All these are capital. Some of the examples of the capital. They help in the further production of goods and services, and they are created by the man. That is a right most important feature, created by man, and they help in the production process. What are the features of the right capital? First feature is it is man-made, artificial in the nature. Artificial. It is not free gift of the nature. They are required to be created. They are required to be produced. Then only we can use them in the further production. So it is a man-made. So it is not a primary factor of production. It is not original factor of production. It is artificial. Second, they help us in the further production of goods and services, and therefore they are also called as produce means of production. Okay? Next, they are passive factor. Passive factor. Capital does not take active part in the production on its own. We must employ, right, land. We must employ labor and entrepreneurship on that capital. Then only it will work. So capital, like labor, is not active. It is like land. It is a passive factor of production. Okay? So passive factor of production. Number three,
लाइक मनी इन योर हाउस, आपने सेव करके रखा है, दैट इज नॉट कैपिटल, दैट इज अ वेल्थ, दैट इज अ वेल्थ, बट दैट इज नॉट अ कैपिटल. Once you bring that money into banking system, then it can get invested, then only it will become a capital. पहले वो मनी कैपिटल बनेगा, बाद में वो रियल कैपिटल में कन्वर्ट होगा. सो मनी इन होम, वो आइडल मनी जो आपके सेफ में, आपके घर में है, वो वेल्थ है, वो कैपिटल नहीं है. अनलेस एंड अंटिल वी यूज इट, unless and until we invest it, we employ labor on it, it is of no use. There's a plot of land, ठीक है. अब now you will say it is land, sir, so it falls under the land. Okay, I will take an example. There's a machinery. So machinery is produce means of production, it is a capital. Unless and until someone works on it, it will not help in the production process. There is a car in your garage, but अगर आप उसको चलाओगे नहीं, then it is of no use. It is a wealth in that case. It is not the capital. Then occupational mobility in two sense. Mobility. Mobility. Occupational mobility. Occupational mobility. Occupational mobility means, can I use capital for different business, different purpose, different task? Yes. Example, I think I am into example farming, and I think, राइट, मैं एग्जांपल में सोयाबीन कल्टीवेट कर रहा हूँ, एंड मुझे लगता है कि सोयाबीन में उतना प्रॉफिट नहीं है और वीट में ज्यादा प्रॉफिट है. आई कैन ट्रांसफर माई रिसोर्सेस, राइट, आई कैन ट्रांसफर माई कैपिटल फ्रॉम cultivation of the soybean to the cultivation of the wheat. Try to understand. So, or I can use the resources for some other purpose. Are you getting my point? So example, capital. Suppose आज इंडिया में रेट ग्रोथ है, राइट, अपना जीडीपी ऊपर जा रहा है, ओवरऑल बोल रहा हूँ, नॉट इन करंट सिनेरियो बट ओवरऑल बोल रहा हूँ. अगर आप पास्ट ट्रेंड देखते हो, सो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड देयरफॉर देयर आर मेनी एमएनसीज हु आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया. बट इफ अगर उनको कल जाके ऐसे लगता है कि इंडिया में वो ग्रोथ रेट नहीं मिलेगा, कोई दूसरी कंट्री में मिलेगा, दे विल लाइक टेक अवे द कैपिटल एंड दे विल इन्वेस्ट इट इन समवेयर एल्स. So capital can be easily transferred from one place to another place, from one activity to another activity. That can be easily done. Are you getting my point? So अगर आपको लगता है एक line of business is not making sense, it is not giving you profit, you can transfer the capital, you can transfer the resources from that line to some other line. So that is called as occupational mobility. And दूसरी होती है geographical mobility. बराबर? Occupational mobility and geographical mobility, and both are present, and their mobility is greater extent as compared to land and labor. Yes, both are present, and even to the greater extent as compared to land and labor. Number 4, right, it is a productive means of production. This is productive factor. Without this, other factors of production are meaningless. If you don't have capital and your other factors like your land, your labor, and your entrepreneur, but without capital you cannot, right, actually produce goods and services. You must require capital to, right, bring all those three together, and then only we can produce goods and services, and then only we can make the profit. So capital is called as productive factor.
Without this, other factors are meaningless. Number 5, right? Supply of capital. Supply of capital is relatively elastic. Is relatively elastic. Supply of capital is relatively elastic. What do you mean by this? Like in case of supply of land is perfectly inelastic from the economy's point of view. For an economy, the supply of land, resources, natural resources cannot be increased even if the prices are increasing. Demand is increasing. Supply of land is perfectly inelastic for an economy, but it is relatively elastic for an individual firm. Means if firm is ready to pay more, they can hire more or they can buy more, like natural resources land. Labor, the supply of labor is relatively inelastic in the short run. Short run में we cannot increase the supply of labor to that extent जितनी demand है. Are you getting my point? Because we need that skill set and everything. So supply of labor in short run is relatively inelastic. Means even if you're ready to pay higher wages, still the like supply will not increase to that extent. Supply will increase, but less than increase in the wages. So that is reason short run में supply of labor is inelastic. However, supply of capital is relatively elastic in short run as well as long run. It is always relatively elastic because capital can be easily made available. Like money capital can be easily made available. You can buy more machineries, right? So supply of capital is relatively elastic in short run. Obviously अगर short run में relatively elastic है तो long run में आपके पास टाइम है. हमने देखा है कि जितना ज्यादा पीरियड रहेगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है. समझ में आ रहा है? सो लॉन्ग रन में तो ऑब्वियसली इलास्टिक रहेगा, शॉर्ट रन में भी वो इलास्टिक है. नंबर 6, राइट? कैपिटल वर्सेस वेल्थ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. The outer circle is wealth. Inner circle is a capital. That is, all capitals are wealth, but all wealth are not capital. What do you mean by this? मैंने अभी एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे. मैंने बोला था that part of the wealth, लिख लेना, that part of the wealth, that part of the wealth that part of the wealth which is used in the production is capital. Is capital. Capital is that part of the wealth which is used in the production. Example, you have, suppose example, this is, you have 4 pieces of the land. You have 4 plots of the land. This is vacant. This is self occupied. खुद रहते हो वहां पे.
यहाँ पे फार्मिंग हो रही है एंड यहाँ पे एक इंडस्ट्री आपने डाली है. So these are the four plots of land. So all those four plots of land are your part of your wealth. वो wealth है. चारों के चारों plots of land are your wealth. But इसमें से two plots are not used in the production. Only two plots are used in the production. These two are used in the production. Farming is a production because you are creating utility. वहां पे कोई इंडस्ट्री है, आपने कोई अरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस इंडस्ट्री चल रही है, कुछ भी चल रहा होगा, वहां पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, या फिर आप शूज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या वहां पे कोई आईटी इंडस्ट्री है, सीए की फर्म है, समझ में आ रहा है, या कुछ सर्विस आप वहां पे दे रहे हो, किराना शॉप है, कुछ भी एग्जांपल ले लो. सो दो प्लॉट्स पे प्रोडक्शन हो रहा है. द टू प्लॉट्स हैव बीन अंडर यूज फॉर द प्रोडक्शन and therefore these two plots are called as capital. This is plot number 1, plot number 2, plot number 3 and plot number 4. Wealth P1, P2, P3 and P4 all are part of your wealth. चारों के चारों आपके wealth है. But capital is that part of the wealth which is used in the production. All the four plots are not being used in the production. Only plot 3 and plot 4 are being used in the production. So capital is P3 and P4. So यही मैं बोल रहा हूँ. Wealth is a broader concept. Capital is a smaller concept. Wealth includes capital as well as some wealth may not be capital, but capital is part of wealth. वो वेल्थ जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं. मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पास एक फोर व्हीलर है और वो गैरेज में, यू डोंट यूज इट, वो प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं की जा रही है, उससे कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है. अगर ऐसी कार है, इट इज योर वेल्थ बट इट इज नॉट द कैपिटल. बट अगर वही कार आप ओला के लिए देते हो, उबेर पे रखते हो, रेंटल बेसिस पे, in that case that car is used in the production. You are creating the utility. That car is a wealth as well as capital. The money which is lying in your home, right, आपके जो कबर्ड में है, जो पैसा रहेगा, right, जो idle money है, that is your wealth but it is not a capital. Unless and until you invest that money in your business or in some banking system, financial institutions, that wealth does not amount to capital. So only that wealth which is put in the production process can be qualified as capital. Capital has all the features of wealth, all the features of wealth. Like, लिख लेना features of wealth. Right, features of wealth. लिख लेना. First feature is, first feature is utility. Wealth has utility. Yes, capital also has utility. Then, right, utility लिख लिया. Then, it has price. Right, wealth has price. Capital also has price. Then, लिख लेना. Third, transferability. Right, transferability means you can transfer the wealth, you can change the ownership, you can sell the wealth, you can buy the wealth.
So wealth has a utility, wealth has a price, wealth is a transferable, and second, wealth is scarcity. It is not abundantly available. All these features of wealth are present in a capital as well. Capital has a utility, capital has its own price, capital can be transferred, and capital is a scale. Okay? So all these features of the wealth are in your capital, and therefore capital is also wealth. But all wealth is not capital. Only that wealth which is used in the production qualifies to be as a capital. And the last point, number 7, it involves social cost. It involves social cost or sacrifice on the part of society. Why? Because in order to create the capital, you have to sacrifice today. You have to make the sacrifice. जो money या जो wealth आप consumption के लिए use करने वाले हो, you will sacrifice the consumption, you will save it, you will convert it into investments, and it will create the capital. So capital formation process जो हमें समझनी है leads to sacrifice on the part of the society. If you have to start the business tomorrow, for that purpose you have to save today. So whatever your current demands are, you will postpone them, you will sacrifice them. That sacrifice, that sacrifice on the part of society is called as social cost. Are you getting my point? अगर आपको कल जाके बिजनेस करना है तो आज आपको क्या करना होगा? Sacrifice करना होगा. You have to save today, you have to sacrifice today's demand, you have to postpone your wants. It requires sacrifice, and therefore it involves social cost. So, right, capital involves social cost, sacrifice on the part of society. लिख लेना. Society is to sacrifice and save for tomorrow. Save for future. So these are the features. इसके सिवा कोई फीचर था 12th में? Yes, anyone? मैं मॉड्यूल में इतनी लिस्ट है. इसके सिवा कुछ थे क्या? इसके सिवा अगर कोई थे तो आप मुझे बोल सकते हो. You can contribute. No problem at all. These are the major features. ठीक है? So capital is right man-made, passive factor of production, mobility. Both mobilities are present. Actually, it is the most mobile factor. It is most mobile factor. ठीक है? In both the terms. Then it is productive factor means without capital, okay, without capital we cannot like conduct the production process. Then supply of capital is relatively elastic. Capital is that part of the wealth which is used in the production, and it involves social cost. Durable. Capital is durable. It is generally used for a longer period of time, however subject to depreciation. Durable but subject to depreciation means we must replace the fixed assets, we must replace the capital. अगर इकोनॉमी खाली कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस करते रहेगी तो वन डे द कैपिटल विल गेट डिप्लीटेड एंड देयर विल बी नो कैपिटल टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स. सो इसलिए प्रोडक्शन of capital goods is also very important because capital is it's durable but not permanent. Try to understand, subject to depreciation. So economy should not just produce only consumer goods, it should also focus on production of the capital goods as well. अच्छा, but subject to depreciation. अच्छा, इसके सिवा और कुछ है तो आप you can contribute, कोई problem नहीं. हाँ, durable in the nature, perfect. ठीक है. So these are the features of capital. Simple है.
देन नाउ इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा था, टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। फर्स्ट, on the basis of, on the basis of durability, that is number of times it is used. Durability means how many times I can use that capital. Can you use again and again and again and again? Or you can use only once. Like raw material can be used only once. Power, fuel, electricity, consumables can be used only once. So like machineries, right? Robots, computers, those are used again and again and again and again. So durability means number of times I can use the capital in the production process. लिख लेना. First is first is fixed capital, and second is circulating capital. Circulating capital, जिसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल. The other name is working capital. So what I want to tell you, the capital which is used again and again and again and again, recurring in the nature, is circulating capital. Like building, computers, robots, plant and machinery, bridges, dams, roads, towers. Example, tower for BSNL is a capital. Tower for Jio is a capital. Airports is a capital. Railway stations, junctions, metro station is a capital. So they are being used again and again and again and again. They are fixed capital. And circulating capital or working capital is capital which is used only once. Once it is used, it gets depleted. उसका recurring use नहीं होता है. Like oil, lubricant oil जिसको हम बोलते हैं, raw material, consumables, right? All these are circulating one. Fixed capital, used again and again. Recurring use होता है. Example में लिखो, building, plant and machinery, computers, etc. अब आपको क्लिक हो जाएगा. फिक्स असेट्स सिंपल वर्ड्स में. नहीं, सर्कुलेटिंग कैपिटल. दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल. यूज्ड ओनली वंस. एग्जांपल, RM, रॉ मटेरियल, ऑयल, फ्यूल, राइट, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एक्सेट्रा. डेटा, डेटा कैन बी कैपिटल. डेटा कंज्यूम हो जाता है ना, फिर से आपको नया डेटा लेना पड़ता है. तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है. देन
on the basis of number of times it can be used. Second, durability. Then mobility, on the basis of mobility. When I said on the basis of mobility means the alternative uses. If I can put it for multiple uses or I cannot use it for different uses. So alternative uses. So लिख लेना, उसको हम बोल सकते हैं alternative uses. Alternative uses. If a capital can be used, if a capital can be used for multiple uses, तो हम उसको बोलते हैं floating capital, floating capital. And if a capital can be used only for single use, it can be called as sunk capital. कोई बोलेगा मैंने 12th में एग्जांपल दिया था कुछ, तो एक फनी एग्जांपल था, इफ यू रिमेंबर. एक होता है sunk capital. sunk capital मैंने sunk capital का एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर. sunk capital. एंड दूसरा होता है floating capital. So third, sunk capital. And sunk capital is very important. You will learn in inter. जब आप costing करोगे, costing subject. So economics is much linked to costing. जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, costing में आ जाएगा. थोड़ा वो practically ज्यादा रहेगा. उसमें cost calculation अगर रहेगा. Sunk capital is a capital which is once used is used forever. मतलब उसका use बहुत limited होता है. I cannot put it for multiple uses. एग्जाम्पल जो इसरो में लॉन्च पैड होगा, लॉन्च पैड, राइट, लाइक मिसाइल्स लॉन्च या सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, दैट इज अ संक कैपिटल. उसका यूज बहुत लिमिटेड है. यस इट इज अ कैपिटल, यस इट इज अ सोशल कैपिटल, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट लाइक ग्रुप ऑफ पीपल. प्राइवेट कैपिटल वो सोशल कैपिटल है, बट उसमें भी इट इज अ संक कैपिटल बिकॉज इसका यूज लिमिटेड है. आई कैन नॉट यूज इट फॉर अदर पर्पज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे कैपिटल जिसका यूज लिमिटेड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई कैन यूज इट फॉर, अगर वो लॉन्चिंग पैड है ना, अगर आप उसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखते हो तो वो फिक्स कैपिटल है. ड्यूरेबिलिटी में वो फिक्स कैपिटल में आता है बिकॉज आई कैन लॉन्च मेनी सैटेलाइट्स, मैं उसको हमेशा यूज कर सकता हूँ. लॉन्चिंग पैड की बात कर रहा हूँ मैं. बट अगर मोबिलिटी अल्टरनेटिव यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, इट इज संक इन द नेचर. समझ में आ रहा है? मैं उसका दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकता. एंड लाइक लिख लेना संक कैपिटल. मैं फिर एग्जांपल देता हूँ. संक कैपिटल एंड दूसरा था फ्लोटिंग कैपिटल. Sunk capital has no alternative use. And floating capital can be used for alternative uses. उसको हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. Has alternative uses. अब एग्जांपल, एक व्हीकल है, एक व्हीकल है लाइक ओमनी, ओमनी, ठीक है. उसको हम नॉर्मल व्हीकल बोल के भी यूज कर सकते हैं या उसको हम एम्बुलेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जब मैं उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट करूंगा तो उसका यूज बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ हॉस्पिटल. बट एक नॉर्मल व्हीकल है जिसको हमने एम्बुलेंस में नहीं कन्वर्ट किया है, उसको हम किसके लिए भी यूज कर सकते हैं? हमारे पर्सनल पर्पज के लिए. हम ट्रैवलिंग की मतलब उसको मैं रेंट पे यूज कर सकता हूँ, लाइक ट्रिप्स के लिए. मुझे कहाँ पे खुद को बाहर जाना है मैं यूज कर सकता हूँ. अगर मेरे फैमिली में कोई बीमार है मैं उसको हॉस्पिटल में लेके जा सकता हूँ. मल्टीपल यूजेस है. अगर किसी की शादी है तो मैं उसको, सपोज मेरी मेरी फ्रेंड की शादी है, उस फ्रेंड को उस गाड़ी में बिठा के लेके जा सकता हूँ. बट एम्बुलेंस का यूज ऐसे नहीं है कि एम्बुलेंस में दूल्हे को सामने बिठाए बोले चल शादी में, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है.
So what I want to tell you, ambulance is also vehicle, but it has very specific use. When you purchase ambulance or when you converted that Omni into ambulance, use has become very restricted. आपको घूमने बाहर जाना है किधर, तो चलो एम्बुलेंस में जाते हैं, अपने पास एम्बुलेंस है घर में. जनरली ऐसे होता नहीं. वी डोंट यूज इट फॉर अदर पर्पसेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे, राइट, अगर ऐसी चीजें हैं जिसका यूज बहुत लिमिटेड हो जाता है, यू आर इन्वेस्टेड इन, यस, यू आर परचेस इट, यस, पैसे डाले हैं, बट उसका यूज बहुत लिमिटेड है. मतलब अगर उसका यूज नहीं होगा ना, वो आपका लॉस हो जाएगा. सम कैपिटल डू नॉट चेंज योर डिसीजन. एक बार आपने खर्चा किया है ना, तो आप पीछे नहीं आ सकते. सो उसका यूज करो तो ही प्रॉफिट है. इफ यू डोंट यूज इट, इट इज लॉस. एग्जाम्पल, अगर कोई ज्वाइन द ट्यूशंस एंड पेड 54,000, आपके लिए 54,000 है, हमारे लिए 46,000 है, बिकॉज जीएसटी के बाद हमारे इनकम है. तो आप, यू हैव पेड 54,000, यू आर इन्वेस्टेड इन द कैपिटल फॉर यू. बट अगर आप डिसाइड कर तो हमें नहीं करना है, इसलिए यू वोंट गेट रिफंड. इट हैज बिकम सम कैपिटल. आप करो या ना करो, यू आर इन्वेस्टेड, राइट. अब उसको फिर से निकाल नहीं सकते. चलो इसके जगह हम कुछ दूसरा कोर्स करते हैं इसी फीस में. वी डोंट ऑफर दैट. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. सो सम कैपिटल इफ नॉट यूज्ड, ठीक है, ठीक है. व्हाट आई वांट टू टेल यू, राइट, सम कैपिटल इज एज गुड एज लॉस, एज गुड एज लॉस इफ यू डोंट यूज इट. हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, सब करते हो, आप पास होते हो, तो आप बोलोगे मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इससे मुझे फायदा हुआ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. कभी कभार आप कोई चीज परचेस करके लेते हो एंड उसका यूज ही नहीं होता है बहुत बार. दैट बिकम सम कैपिटल. उसका यूज बहुत स्पेसिफिक है. सो मैंने एग्जांपल दिया एम्बुलेंस वर्सेस नॉर्मल व्हीकल. एम्बुलेंस हैज वेरी स्पेसिफिक यूज. आई कैन नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पस. सो इट हैज बिकम सम कैपिटल. बट नॉर्मल व्हीकल कैन बी यूज. मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूँ, खुद के यूज के लिए यूज कर सकता हूँ, राइट. घूमने जाना है बाहर किधर भी, मैं उसको जो चाहिए वो यूज कर सकता हूँ. एम्बुलेंस की तरह भी अगर कोई पेशेंट है, उसको भी मैं लेके जा सकता हूँ हॉस्पिटल में, राइट. ऑल मल्टीपल यूजेस आर पॉसिबल. सो द सेम व्हीकल अंडर फर्स्ट कैटेगरी, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इट इज अ फिक्स कैपिटल. कितने टाइम यूज कर सकता हूँ, एंड उसके अल्टरनेटिव यूजेस है क्या, अलग अलग है. आई कैन यूज द व्हीकल मल्टीपल टाइम्स, सो इट इज फिक्स कैपिटल. बट अगर मैं अल्टरनेटिव यूजेस देखता हूँ, एम्बुलेंस is a fixed capital under category 1, but under category 2 it is a sunk capital. Are you getting my point? Launching pad used by ISRO is fixed capital under category 1, but it is a sunk capital under category 2. Then normal vehicle, normal four wheeler is a fixed capital under category 1, and it is floating capital under category 2. Oil है, lubricant oil वगैरह, consumables, rusting paper वगैरह, that is circulating capital in durability option, and it can be put for multiple users. जो जिसके लिए चाहिए उसके लिए कर सकते हैं. Then it is floating capital. It is a floating capital. Try to understand. समझ में आ रहा है? अगर उसका यूज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, then it is sunk capital only. Next, so example ambulance. मैं दूसरा एक एग्जांपल दे सकता हूँ जो लड़कियों को जल्दी समझ में आएगा. किचन में इडली बनाने के लिए जो वेसल होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, बट उसका यूज वैसे देखा जाए बहुत लिमिटेड है. वो इडली बनाने के लिए होता है. उसमें बाकी चीजें वरण वगैरह नहीं कर सकते, उसमें बाकी नहीं. बट जो नॉर्मल आपका घर में वेसल रहेगा, उसमें आप चाय भी बना सकते हो, उसमें आप दूध भी गर्म कर सकते हो, उसमें कोई सब्जी भी बना सकते हो, पानी भी गर्म कर सकते हो. तो वो जो दूसरा वेसल है उसका यूज लिमिटेड है. मैं नहीं बोलता हूँ कि खाली इडली के लिए, उसका बाकी भी यूज हो सकता है. आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द किचन, कुछ नहीं समझता मुझे. आई डू एग्री, ठीक है. लॉकडाउन में मैं सीखने वाला था बट जरूरत नहीं पड़ी. सो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो वेसल है, जो पर्टिकुलर वेसल है, उसको आप बोलोगे वो सन कैपिटल है. एंड जो नॉर्मल वेसल है,
किसके लिए भी यूज कर सकते हो, दैट बिकम्स फ्लोटिंग कैपिटल. सो एम्बुलेंस एंड यहाँ पे एनी अदर व्हीकल. yesterday I was watching a movie स्पेशल 26, आपने देखी होगी, गुड मूवी. उसमें वो एम्बेसिडर यूज करते हैं गाड़ी. एम्बेसिडर बहुत पहले, मतलब अभिषेक सर के पापा के पास तब एम्बेसिडर गाड़ी थी. आई रिमेम्बर उनके फैमिली में सर के पापा के पास तब एम्बेसिडर थी. मतलब एम्बेसिडर होना मतलब वो विलेजेस में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन. ठीक है. आई रिमेम्बर, मतलब वो आते थे तो हम गाड़ी में बैठते थे वगैरह. तो उनके पास एम्बेसिडर गाड़ी थी. अभी नहीं मिलती, बट उस मूवी में ली है. जब उनको वो रेड डालनी होती है तो ऊपर वो ये लगा देते हैं साइलेंसर, तो वो बन जाती है लाइक सीबीआई वालों की गाड़ी, इनकम टैक्स वालों की गाड़ी. एंड काम होगा तो निकाल लेते हैं. तो नॉर्मल गाड़ी बन गई, उसमें वो पैसे वगैरह लेके जाते हैं. सो यू कैन सी दैट व्हीकल हैज मल्टीपल यूजेस. सो उसको आप फ्लोटिंग कैपिटल बोलो. समझ में आ रहा है? सो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो फ्लोटिंग कैपिटल होता है उसको हम कैसे भी चाहिए यूज कर सकते हैं. बट अगर कैपिटल वेरी स्पेसिफिक है तो नहीं. एग्जाम्पल, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इट इज वेरी कॉस्टली, बट उसके यूज इज वेरी स्पेसिफिक. समझ में आ रहा है? तो दैट बिकम्स योर सन कैपिटल. इट इज अ सोशल कैपिटल, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज लाइक इट इज अ सन कैपिटल. बट वही अगर आप देखते हो, राइट, गवर्नमेंट ने कोई एक प्लेग्राउंड परचेस किया है या ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट किया है, इट इज अगेन ए सोशल कैपिटल. बट उसमें हम शादी के लिए भी दे सकते हैं, कोई बर्थडे पार्टी उसके लिए यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट का है. ठीक है. उसमें बाकी कोई भी प्रोग्राम्स, मीटिंग्स हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूजर्स आर मल्टीपल. तो वो कैपिटल बन गया फ्लोटिंग कैपिटल. सो नंबर ऑफ यूजेस, इफ अल्टरनेटिव यूजेस फ्लोटिंग, if not it is sunk capital. This is fourth. Next, on the basis of, लिख लेना, on the basis of nature of the capital. Nature of the capital. Example, मैंने बोला मनी कैपिटल. सेकंड, रियल कैपिटल. तीसरा, ह्यूमन कैपिटल. ये सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. ये पहले दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्यूरेबिलिटी एंड मोबिलिटी. फ्लोटिंग को लोग सर्कुलेटिंग बोलते हैं, वो गलत है. सर्कुलेटिंग मतलब एक ही बार यूज होगा, बट अगर वो अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है तो वो फ्लोटिंग बन जाता है. सर्कुलेटिंग इज डिफरेंट एंड फ्लोटिंग इज डिफरेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल. फोर्थ, टेंजिबल कैपिटल. फिफ्थ, इंटेंजिबल कैपिटल. So five types of capital. Money capital, which is in the form of money, maybe cash in hand, cash at bank, debentures, share capital, loans, right? All those are called as money capital, which is in the form of money. Obviously, you must have money capital, then only you can buy real capital. Real capital is a physical asset, physical. That is not in the form of money. Money is used to buy the real capital, like plant and machinery, building, right? Then computers, robots, like the bridges, then roads, dams, airports, railway station, metro stations, bus stands. तो कैपिटल, एवरीथिंग इज अ कैपिटल. या तो सोशल कैपिटल हो सकता है या फिर वो आपका प्राइवेट कैपिटल हो सकता है. बट द कैपिटल विच इज इन द फिजिकल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं रियल कैपिटल. ऑब्वियसली फर्स्ट यू मस्ट हैव मनी कैपिटल. मनी कैपिटल does not help in the real production. Money capital needs to be converted into real capital, and real capital is used in the production. That is the difference. So
जो आपके स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी होती है, डिबेंचर्स होते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल होते हैं, लोन्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर मनी कैपिटल. एंड विद द मनी कैपिटल, right, we can buy the real capital, physical capital. What is human capital? Human capital is your employees. अब बोलोगे सर एम्प्लॉइज तो लेबर में आता है, बट दोज एम्प्लॉइज whom you have groomed, जिनको आपने स्किल से जनरेट किया है, ट्रेनिंग दी है. So even labor is your capital, it's your asset. Trained employees, top management, they are human capital. ठीक है? It is asset of the organization. Tangible capital and intangible capital. Tangible capital को आप real capital भी बोल सकते हो, real capital or money capital, which is a physical substance which can be touched, tangible. Land, building, cash in hand, right? Then your robots, computer, everything, bridges वगैरह जो भी physically है, tangible. And intangible capitals do not have physical substance like goodwill, right? Your brand, trademark, copyrights, patents, right? Licenses. They are intangible capital, do not have physical substance. So money capital is in the form of money. Real capital is when money capital is converted into real capital, physical capital. ठीक है? So ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इनटेंजिबल कैपिटल. ये सिंपल है, मैं उसके इन डिटेल में लिख के नहीं दे रहा हूँ. एंड द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हु ओन्स दैट कैपिटल. On the basis of ownership, capital can be divided into first private capital, second social capital. The private capital is capital owned by individuals or group of individuals. पर्सनल ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है. लाइक एग्जांपल, अगर आप अलीबाग एरिया में जाओगे, वहां पे यू विल फाइंड जीएसडब्ल्यू प्लांट्स. ऑलमोस्ट 100 to 100 एकर्स के प्लांट मिलेंगे आपको. या आप यहाँ पे पुणे में भी आप देखोगे एमआईडीसी एरिया वगैरह. सो वहां पे उनके 100 to 100 300 एकर्स के बड़े बड़े प्लांट होते हैं. इट इज लाइक ए टाउनशिप. सो द कैपिटल, उसमें जो रोड्स है, उसमें अगर कोई ब्रिज है, उसमें जो बिल्डिंग है, they are owned by the individual or group of individual, that is the private capital. On the contrary, social capital is a capital owned by society or the government. Society as such, railway stand, bus stand, right? Or you can say um, uh, your dams, bridges, roads, no, right? Public roads, parks, Pune Municipal Corporation के parks, anyone can enter. Those are public property or social capital. So private capital is owned by the individual or group of individuals, right? एक कोई टाटा मोटर्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ देखते हो, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट देखते हो, दे आर प्राइवेट कैपिटल. वाडिया की बिल्डिंग, बीएमसीसी की बिल्डिंग, राइट, दे आर प्राइवेट कैपिटल. बट अगर वही पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग, इट इज अ सोशल कैपिटल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सोशल कैपिटल इज ओन्ड बाय द सोसाइटी और द गवर्नमेंट, इन शॉर्ट. ठीक है? सो ओनरशिप के हिसाब से ये होते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल. जिनको लिखना है जल्दी लिखो, राइट, मेक इट फास्ट. इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछते हैं, जल्दी करो. ये जो चार नीचे लिख के दे ना, दे आर मोर इंपॉर्टेंट. अच्छा, किसी के डाउट्स है, आई विल टेक दोस डाउट्स. रेज योर हैंड, आई विल टेक द डाउट्स. अच्छा, ओके.
यस हर्षवर्धन, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, fixed capital is a capital which is used again and again and again. Circulating capital is used only once on the basis of number of times it is used, fixed or circulating, and on the basis of alternative uses, वो होता है sunk capital और floating capital। ठीक है, sunk capital like sunk capital का प्रॉब्लम क्या है पता है, you have incurred it, आप आपके डिसीजन पीछे नहीं आ सकते। तो अगर आप उस डिसीजन से पीछे आते हो तो सम कैपिटल विल बिकम लॉस। संग मतलब डूब गया, अगर आप मतलब वो फिर से रिकवर नहीं होगा, आप उसको किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो द कैपिटल which does not have alternative uses is the sunk capital। जैसे मैंने बोला, आपने क्लास के लिए एडमिशन लिया ना, आप छोड़ देते हो, इट बिकम योर sunk capital, डूब गया वो आपका। हाँ, आप उसको आप बाकी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग में? एक आपने एक मूवी का टिकट निकाला, रेस 3 का टिकट निकाला, और बाद में आपको पता चला यार अपने एडवांस में बुक करके मूवी बहुत वाहियात है, तो नाउ यू कैन नॉट चेंज कि आप मुझे दूसरी मूवी का टिकट दे दो, इट बिकम सम कैपिटल। आप नहीं जाते हो, डूब गया हो आपका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। वही अगर आपके पास कोई कूपन है, एग्जाम्पल पुणे सेंट्रल का कूपन है, आपके बर्थडे पे किसी ने आपको कूपन दिया 1000 रुपीज का, नाउ यू कैन बाय एनीथिंग दैट यू वांट। समझ में आ रहा है? या एग्जाम्पल आपने आपके गर्लफ्रेंड के लिए 10,000 का कूपन लिया एंड बर्थडे के पहले ही ब्रेकअप हो गया, तो यू कैन गिव टू अनदर, उसपे थोड़ी उसका नाम लिखा है, इट इज फ्लोटिंग कैपिटल। नई गर्लफ्रेंड होगी तो नई वाले को दे दो, उसको मत देना। समझ में आ रहा है? अदरवाइज इट विल बिकम सम कैपिटल, उसका कोई फायदा नहीं। सो नई ढूंढो और उसको दे दो। सो अगर हम ऐसे चेंज कर सकते हैं उसका यूज, तो वो होता है फ्लोटिंग कैपिटल, अदरवाइज इट बिकम्स सम कैपिटल। हाँ, जो पुराने वाले पे खर्चे किए वो सम कैपिटल हो गया। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो रिकवर नहीं होगा अब। सो कॉस्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी टेक डिसीजंस, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड सम कैपिटल डज नॉट चेंज आवर डिसीजन। आपने खर्चा किया तो किया, अगर नहीं किया तो नहीं किया, एज सिंपल एज दैट। आगे नेक्स्ट, ओके, व्हाट रियल कैपिटल इज अ कैपिटल, राइट, व्हिच कैन बी, अरे मैंने मैंने इन्वेस्टमेंट बोला कि कोई लड़की ने लिखा है कि सर आप द गर्ल डिडंट आस्क टू डू खर्चा, मैंने किधर बोला? राइट, मैंने आई नेवर डिड इट। सो मैंने थोड़ी ऐसे बोला है। ठीक है, अरे लड़के पागल होते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, लड़कियां पागल होती है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ऑब्वियसली लड़के पागल होते हैं, उनको कॉमन सेंस नहीं होता। आगे, सो रियल कैपिटल, किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर एक्सप्लेन द रियल कैपिटल। रियल कैपिटल इज अ फिजिकल, मतलब वन कैन से टेंजिबल कैपिटल इज अ रियल कैपिटल, लाइक फिज लाइक मनी कैपिटल, मतलब वो मनी फॉर्म में होगा, मनी फॉर्म में, लाइक कैश इन हैंड इज मनी कैपिटल। अगर उससे आप मशीनरी परचेस करते हो तो मशीनरी बिकम्स रियल कैपिटल। सो ये एक दूसरे के अपोजिट है, मनी कैपिटल वर्सेस रियल कैपिटल, राइट, टेंजिबल कैपिटल वर्सेस इनटेंजिबल कैपिटल। समझ में आ रहा है? सो ये एग्जांपल, कैश एट बैंक, आपके बैंक में 10 लाख रुपए है एंड उससे आप कोई मशीनरी परचेस करते हो, तो नाउ दैट 10 lakhs was money capital and 10 लाख की आपने मशीनरी परचेस की, so that machinery becomes your which capital, right, real capital। so मनी फॉर्म में जो कैपिटल है उसको मनी कैपिटल बोला जाएगा, जो फिजिकल फॉर्म में कोई एसेट के फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे या आपने गुड्स परचेस किए, बैंक में पैसे और आपने बाद में गुड्स परचेस किए, सो दैट इज इन्वेंट्री, दैट इज ऑल्सो कैपिटल, राइट, या आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, सो नाउ इट इज इन अ फिजिकल फॉर्म एंड नॉट इन मनी फॉर्म, उसको रियल कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर। सो दीज आर टाइप्स ऑफ कैपिटल, यू नो ऑल दिस फीचर्स। इसमें इंपॉर्टेंट है वेल्थ, ये वाला ये समझना इंपॉर्टेंट है, वेल्थ वाला। एंड दूसरा टाइप्स ऑफ द कैपिटल, उसमें भी मैंने बोला ड्यूरेबिलिटी एंड मोबिलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस, द थ्री स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Capital formation process, right? If you don't create the capital, the existing capital will get depreciated and there is no scope of the production of the consumer goods. So you must form the capital, you must create the capital. Capital formation is also called as investments. The other name of the capital formation is investment. Generally the capital, like जनरली जिस कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज्यादा होता है वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज कैपिटल इज यूज फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। एंड जिस कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट कम होता है वहां पे डेवलपमेंट एज कंपेयरली लेस होती है। सो कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी एज सच। एंड देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहली स्टेज है, थ्री स्टेजेस। स्टेज वन इज द सेविंग्स। स्टेज वन is savings. First stage of the capital formation is a savings. So basically you need sacrifice in order to create the capital. Social cost involved होती है, हमने फीचर में देखा था. So if you have to create the investment, if you have to create the capital, you require to start a business. आपको 2 साल के बाद 3 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट करना है. For that purpose you require capital. वो कैपिटल ऐसे नहीं बनेगा, you have to save. So savings is very important. Higher the saving, higher is the rate of capital formation. Less is the savings in the economy, less is the rate of capital formation. Saving depends on two things. Saving depends on two things. One, ability to save. Plus willingness to save. Ability to save and willingness to save. This is very important. Generally, ability to save depends on your income level. Generally बोल रहा हूँ, income level या even other factors which are beyond your control, like banking system है क्या, government के taxation policies क्या है. Ability to save depends on income level. Higher the income, we say more is the saving. Lower the income is a less is the saving. हमने 12th में propensity to consume and propensity to save सीखा था in aggregate chapter, if you remember. हर एक ने 12th दिया, everyone has that in their syllabus. मे बी बहुत लोगों का ऑप्शन था, महाराष्ट्र बोर्ड का तो ऑप्शन ही था एग्रीगेट चैप्टर. उसमें दो चीजें थी, प्रोपेंसिटी, कई साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में हमने देखा था, लाइक कंजम्पशन फंक्शन या लॉ ऑफ कंजम्पशन देखा था. उसमें हमने देखा था कि देयर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेटर एज योर इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस बट बियॉन्ड ए लेवल सेविंग्स इंक्रीजेस. सो आफ्टर राइट ए सर्टेन इंक्रीज इन द इनकम, राइट, हम क्या करते थे, सेविंग्स इंक्रीज होती थी, बराबर ना. व्हाट इज योर सेविंग्स? सेविंग्स इज इनकम माइनस कंजम्पशन. दैट part of your income which is not consumed, which is saved, is a saving. As income increases, say tendency to save, propensity means tendency to save increases. So higher the income, higher is the tendency to save. Lower the income, lower is the tendency to save.
सो अगर किसी इकोनॉमी में इनकम लेवल हायर है तो वहां पे टेंडेंसी टू सेव इज मोर एंड देयरफॉर एबिलिटी टू सेव इज आल्सो मोर. एट द सेम टाइम जस्ट एबिलिटी से काम नहीं होता है. देयर शुड बी विलिंगनेस टू सेव एज वेल. It depends upon willingness to save depends on upon person to person. Like if someone concerns about his future, therefore he will save. अब cautions थे देखो, cautions जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा, right? You want to save in the future. आपको लगता है कि कल जाके पैसे लगेंगे मेडिकल के लिए, इमरजेंसी के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, राइट? आपको बाद में जाके कुछ परचेस करना है, लाइक यू वांट टू डोनेट द मनी एट द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ. अगर ये कंसर्न है आपको, ये आपके मोटिव्स है, इन दैट केस यू विल सेव, विलिंगनेस टू सेव. बट आपके पीछे कोई नहीं है, आपको किसी की पड़ी नहीं है, यू आर नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर, इन दैट केस वी सेव लेस. जैसे कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यूएस वगैरह वहां पे जब लोग कमाते और उड़ाते भी है, they don't bother about the next generation. But India में एकदम उल्टा है. Your parents will save, they will consume less and they will save for you. And same you will do with your children because वो inherited होता है. तो हमारा कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है. Our parents are more cautious about our future. पहले आपकी पढ़ाई, फिर आपकी शादी, शादी के बाद आप अगर काम नहीं करोगे तो आपको फिर से पोसना होगा उनको. If you don't succeed in your life, right, at the later stages you should be in position to, right, provide them the required services. उन्होंने आपको नहीं करना चाहिए. सो एटलीस्ट उतना तो काबिलियत हर एक ने बनना चाहिए. दैट इज अ कल्चर ऑफ इंडिया. सो अगर ये मोटिव्स है तो देयर विल बी विलिंगनेस टू सेव. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. इट डिपेंड्स ऑन योर कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर ठीक है. सो first stage of the capital formation is the savings. Society must save in order to create the capital. They should sacrifice today. They should create the social cost. So savings, higher the savings, higher is the capital formation. Lower is the savings, lower is the capital formation. And saving depends on the two things: ability to save. Right? A beggar cannot save because his ability itself is less. Maybe he's a willingness. He wants money for the future, वगैरह वगैरह. He wants to have a house. He wants to have good future, good standard of living in the future, secure life. But his ability itself is less. खाली willingness से काम नहीं चलेगा, ना ही ability से काम चलेगा. Both should come together. Then only there will be savings. So ability to save also, right, or willingness to save also depends on other factors like taxation policy. Government gives tax benefit if you save the money. अगर गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है सेविंग्स के लिए तो ऑब्वियसली यू विल सेव. अगर गवर्नमेंट, आपकी बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, राइट, यू कैन इजीली सेव द मनी. ये भी चीजों पे, अदर फैक्टर्स पे भी सेविंग्स डिपेंड होती है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इज द सेविंग्स. सेकंड स्टेज इज द मोबिलाइजेशन ऑफ दोस सेविंग्स और चैनलाइजेशन ऑफ दोस सेविंग्स. स्टेज 2, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. ये जो सेविंग्स हाउस होल्ड ने करके रखी है, दिस सेविंग्स शुड बी मोबिलाइज्ड and should be made available to the persons who require it. सेविंग्स घर में करके इंपॉर्टेंट नहीं है. सेविंग्स चैनलाइज करनी चाहिए, मोबिलाइज करनी चाहिए, बिकॉज कोई हाउस होल्ड सेव कर रहा है एंड फर्म्स प्रोड्यूसर्स रिक्वायर्स इट टू परचेज द रियल एसेट्स. दे रिक्वायर इट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स एज द केस में बी. दे रिक्वायर फंड्स, प्रोड्यूसर्स, एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर्स फंड्स. एंड ये फंड्स कौन अवेलेबल करवा के देता है? हाउस होल्ड थ्रू दियर सेविंग. सो इनके बीच में ये ब्रिज है. एक हाउस होल्ड सेव्स, प्रोड्यूसर्स रिक्वायर दोस फंड्स टू कन्वर्ट दैट सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट.
सो इनके बीच बीच में जो ब्रिज है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, राइट, financial institutions, right, mutual funds, right. There are many financial institutions. They mobilize the savings. They take the savings from the household and make it available to the entrepreneurs. Entrepreneurs borrows money from the financial institutions, use that money capital to acquire real capital, and that real capital is actually put into production of goods and services. सो हाउस होल्ड से पैसे जमा करना, उसको उनके सेविंग्स को बैंकिंग में लेके आना एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू द पर्सन हु रिक्वायर इट, उसको बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग. सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इज द सेकंड स्टेज. It mobilization of saving depends on your infrastructure facility like banking, internet and everything. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नेटवर्क जो जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी सेविंग्स इजीली मोबिलाइज होगी फ्रॉम हाउस होल्ड टू द, राइट, राइट, लिख लेना. Mobilization of savings is collecting savings from household and making it available from household and making it available to business sector, available to producers. हमने इकोनॉमी के 2 टायर मॉडल सीखा था 12th में, 3 टायर मॉडल सीखा था, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर. 3 टायर में गवर्नमेंट होता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी सीखा था, उसमें 2 सेक्टर्स होते थे, राइट. एक होता था हाउस होल्ड एंड दूसरा प्रोड्यूसर. आईएससी में 3 टायर था, उसमें गवर्नमेंट था बीच में, बिकॉज टैक्सेस भी हम देते हैं, हाउस होल्ड भी टैक्सेस देता है, प्रोड्यूसर भी टैक्सेस देते हैं, उनके इसमें 3 टायर था. इंटर में यू विल लर्न 4 टायर्स. इंटर में 4 टायर स्टडी करोगे इकोनॉमिक्स में. सो ऐसे डिफरेंट. सो बेसिकली मैं 2 ही ले रहा हूँ, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स. सो हाउस होल्ड से वो पैसा कलेक्ट करना एंड वो जिनको जरूरत है प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल करवा के देने, इस प्रोसेस को बोला जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. प्रोड्यूसर्स, 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 ठीक है. सो सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. थर्ड, द लास्ट इज इन्वेस्टमेंट. Once household saves the money, it is mobilized through the banks, financial institution, and made it available to the producers. Producers invest it and they use that money in the production of goods and services. So last stage is the investment of the money. That's savings. So investment और उसको आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो. So money capital is converted into real capital and used in the production. इसमें लिख लेना, money capital is converted into real capital, physical capital, and used in production of goods and services. So the 3 stages: savings, mobilization of savings or channelization of savings, and third, investment. Overall, this process can be also called as investment. Capital formation can also be called as investment. So these were the capital. ठीक है, ये capital के related points थे. Then savings depends on ability and willingness. है, ये भूलना मत. Savings depends on ability to save and willingness to save. Then last one is entrepreneurs, right? Entrepreneur is called as captain of the ship. He is the person who will bring all
other factors of production together, right? He will bring them in a required proportion. कितने लेबर चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कितना लैंड चाहिए. He will bring them, he will coordinate the activities, he will take the risk, like of he will bear the risk and uncertainties, and he will be the leader. He is a visionary person, right? um, ये सब फीचर्स थे उसके. So what is more important in the entrepreneurs, right? जितने अच्छे, right, जितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स किसी कंट्री में होते हैं उतनी वो कंट्री डेवलप होती है. Like India is blessed to have some of the great industrialists, some of the greatest entrepreneurs, and therefore India is a developing country. Example, Tata's, Ambani's, right, are examples. Then Bajaj, right, Mahindra. So they are the entrepreneurs. They bear the risk. They create the opportunities. They find, they are innovative, and therefore, right, they they lead the production, right? The developed countries, आप जितने developed countries में जाओगे, you will find, right, the greatest person, greatest entrepreneurs. So Mark Zuckerberg can be one of the example. So अब जो अभी प्रेजेंट है हम उनको देख सकते हो. बिल गेट्स यूज्ड टू बी, राइट, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स, राइट. आप कितने एग्जांपल्स लोगे? ये सब जो लोग हैं, राइट, दे आर, राइट, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स. मैंने यूज्ड टू बी बोला, शायद से वो गलत है, ठीक है. सो यस, सो I mean, right, entrepreneurs will decide the prosperity of the economy. इसमें important क्या है? Basically his three functions. First function is first function is start the enterprise. Enterprise. Second, bear the risk and uncertainties. There are two types of risk which can be insurable. Insurable risk and uncertainties, and uninsurable or non-insurable, जो भी बोलना है बोलो. Insurable and uninsurable. Insurable risk can be insured by taking the insurance cover. So entrepreneur is not required to bear this risk. उसके लिए insurance companies है, premium पे करो, they are get covered. But entrepreneur is required to bear uninsurable risk. Examples of insurable risk or uncertainties are example loss by theft, loss by fire, right? Lost फायर थे. आप दूसरा ले सकते हो, जिनका इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, जिनका इंश्योरेंस कवर होता है, राइट. देन नॉन इंश्योरेबल और अनइंश्योरेबल, नॉन बोलो, नॉन इंश्योरेबल, राइट, रिस्क आर those which are not covered by the insurance companies. Like example, right, example, अब लॉकडाउन में कितने बिजनेस का नुकसान हुआ, कितने बिजनेसेस का नुकसान हुआ लॉकडाउन में, बिकॉज shops are closed. None of the insurance company covers that loss. Are you getting my point? Yeah. Changes in demand, changes in demand because of demand, because of
changes in taste and preferences of consumer, changes in taste and preference. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कस्टमर्स की टेस्ट कम चेंज हुई है. नाउ योर प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर फेवरेबल टू हिम, राइट? हिज टेस्ट हैज चेंज. अगर ऐसे केसेस में your demand changes, your demand decreases, this is a risk, this is uncertainty. This risk cannot be insured. You cannot get your such risk insured. Try to understand. Yes, changes in government policies, good example. Changes in government policies, in government policies, जो बॉम्बे में बाहर से डांस बार्स वगैरह, उनको गवर्नमेंट ने लाइक बैन किया है. तो ऐसे बिजनेसेस के लिए जो चेंज इन द पॉलिसी है गवर्नमेंट की, दैट इज नॉट फेवरेबल, दैट इज अ रिस्क, दैट इज अनसर्टेनिटी. कभी भी बैन आ सकता है. अगर ऐसे है तो दैट अनसर्टेनिटी, दैट रिस्क कैन नॉट बी गेट इंश्योर्ड. सच रिस्क आर टू बी बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर का काम है नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को बेयर करना, ना कि इंश्योरेबल. समझ में आ रहा है? सो दिस कैन बी द एग्जांपल्स, राइट, ऑफ नॉन इंश्योरेबल और अनइंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. और भी हो सकते हैं. थर्ड, ठीक है, थर्ड, इनोवेशन. Innovation is very important because innovation gives you profit. If innovative firm, right, can make the impact in the market and they can earn the profit, obviously everyone will copy it. Everyone will copy it and, right, over a period of time फिर profit आपका normal हो जाएगा. But initial phase में, because of innovation, you can earn good amount of the profit. Like example, we at Ekaton started with the online lecture. We are the first movers जिन्होंने start किए, and later on others copied it. Even in inter lecture, Abhishek sir was like telling about the same. Inter के जो बच्चे मुझे बोल रहे थे, others have copied it. जो हम लोग कर रहे हैं exactly same copy कर रहे हैं. But they started after 1 or 2 months. During that period of time, we started early, right? We took the admissions of the students and we are delivering. Basically, जब हम बात करते हैं ये सब चीजों की, whenever हमारी बात होती है मेरे अभिषेक सर की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट. वी आर डिलीवरिंग द सर्विसेज, वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट जो बाकी लोग कर रहे हैं. वी आर हियर टू गिव द सर्विस. ऑब्वियसली वी विल चार्ज फॉर इट, राइट? सर्विस, प्रीमियम सर्विस दे रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. 2,000 में ले लो, 4,000 में ले लो, डिस्काउंट भी ले लो. नो, वी आर हियर टू गिव द सर्विस. सो what I want to tell you, if you don't bring some innovations, if you are not a creative, then you will not sustain. It's very simple. You have to be innovative, you have to be creative, then only, right, you can make the abnormal profits. Normal profit maybe आप by doing whatever others are doing आप normal profit कमा लोगे. बट अगर आपको सुपर नॉर्मल है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो यू हैव टू बी इनोवेटिव. एंड ब्रिंगिंग इनोवेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. सो कौन कौन से बोला मैंने? स्टार्ट द एंटरप्राइज, राइट. दूसरा, बियर द uninsurable or non-insurable risk and uncertainties. And third is innovation. Third is innovation. ये जो तीन चीजें हैं, ये जो तीन फंक्शंस है, these three functions are very important. ये तीन फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के. एंटरप्रेन्योर के बाकी भी बहुत सारी थ्योरी है, वो मैं सबसे एंड में कवर करता हूं बिकॉज वो थ्योरी है. ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दीज आर द लाइक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. एंड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. सो मैंने बोला ऑल इनपुट्स, there are millions of the inputs which are used in the production process, जिनको हम 4 चीजों में डिवाइड करते हैं: लैंड, नेचर्स गिफ्ट, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. इनको भी हम 2 में डिवाइड करते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन.
जिनको हम इनपुट्स भी बोलते हैं, इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. Fixed factors and variable factors. मैंने सब इनपुट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया उनके नेचर के हिसाब से. एग्जांपल, वाटर मैंने लैंड में डाल दिया, समझ में? वाटर मैंने लैंड में डाल दिया. देन लैंड को मैंने लैंड में डाल दिया, बिल्डिंग को मैंने कैपिटल में डाल दिया, मनी कैश मैंने कैपिटल में डाल दिया, लेबर मैंने उसको लेबर में डाल दिया, ए पर्सन वर्कर, लीडर एंटरप्रेन्योर उसको मैंने एंटरप्रेन्योर में डाल दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रोबोट वो भी लेबर जैसे काम कर रहा है बट वो कैपिटल में आ गया बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमन. समझ में आ रहा है? सो मैंने ऐसे अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने चार इसमें डाल दिया. एंड देन बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ स्टडिंग द प्रोडक्शन फंक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन. वन मस्ट अंडरस्टैंड, one must understand the factors of productions can be divided into two parts, fixed factors and variable factors. क्या? Fixed factors and variable factors. देखते हैं, लिख लेना डिफरेंसेस. फर्स्ट डिफरेंस, ये जो लिख के दे रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे ये पूरा चैप्टर है, कॉस्ट चैप्टर है, इसके बाद मार्केट चैप्टर है, सब इस पे डिपेंड करता है. ठीक है? सो फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, दे आर इनपुट्स. फिक्स इनपुट्स बोलो चाहिए तो, वेरिएबल मतलब जो हम प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं वो फिक्स्ड हो सकते हैं या वेरिएबल हो सकते हैं. फिक्स मतलब कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब दे आर चेंजिंग. फर्स्ट लिख लेना, राइट? लिख लेना फर्स्ट. Fixed factors are the factors which cannot be easily changed in the short run or in day-to-day activities. लिख लेना, factors which cannot be easily and quickly changed in short run. That is, they require long time or long run, or right? That is, they require long run to alter them. Factors which cannot be easily or quickly changed in the short run, right? Right? They require long time to make adjustments in them. लिख लेना, which are fixed. Inputs which are fixed. Short run में मैं change नहीं कर सकता. They are fixed factors. Variable factors, लिख लेना, factors which can be easily and quickly changed or adjusted. Changed and adjusted. ठीक है? In short run. In short run.
there are some factors, there are some inputs which can be easily changed in the short run, and some cannot be easily changed in the short run. शॉर्ट रन में अगर फिक्स्ड है तो हम उसको फिक्स फैक्टर्स बोलते हैं, अगर शॉर्ट रन में वेरिएबल है तो उनको हम वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं. शॉर्ट रन और डे टू डे एक्टिविटीज, और डे टू डे एक्टिविटीज. Example, we have one classroom having a capacity of 100 students. Now, we want to buy additional classroom. Suppose there is admission of 4 additional students. 100 students हो चुके हैं. There are admission of 5 additional students. So for them, for that purpose, will you buy the new building? It depends. Or new classroom. It will take time. It will take, right? We will wait for actual में हम wait भी करेंगे कि इस साल में भी ज्यादा एडमिशन नेक्स्ट ईयर में भी होने चाहिए. Then there is a point in buying a new classroom or hiring out a new classroom. बट हम एक काम कर सकते हैं, उसी क्लासरूम में वी कैन पुट द चेयर्स, 5 चेयर रख देंगे जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं. सो देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है. कैन वी बाय द न्यू क्लासरूम इन द शॉर्ट रन? कल ही जाके बाय कर सकते हैं क्या? नो. इट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म डिसीजन. हाँ, 2 साल 3 साल में मैं सोच सकता हूँ कि नई क्लासरूम लेनी है, बट इन द शॉर्ट रन आई वोंट बाय द न्यू क्लासरूम. व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द एडजस्टमेंट इन द सेम क्लासरूम. सो जो मेरा मेरे पास जो इनपुट है क्लासरूम दैट इज फिक्स, बट जो बेंचेस है आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ बेंचेस, आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ चेयर्स. मैं उसमें कोई चेंजेस कर दूंगा सो दैट आई कैन एडजस्ट दो स्टूडेंट्स. माय आउटपुट इज इंक्रीजिंग. आई कैन इंक्रीज माय आउटपुट बाय चेंजिंग द लेआउट. मतलब मैं सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी चेंज कर रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसे है तो उस सो हाँ, I was talking about the fixed factors versus variable factors. फिक्स फैक्टर्स मैंने बोले वो फैक्टर्स होते हैं, वो इनपुट्स होते हैं जो हम इजीली चेंज नहीं करते इन द शॉर्ट रन, या कर नहीं सकते इन द शॉर्ट रन. इट इज नॉट पॉसिबल. बट वेरिएबल इनपुट्स या वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन. एग्जाम्पल, आई कैनॉट बिल्ड ए फैक्ट्री बिल्डिंग इन शॉर्ट रन. एक दिन में, 2 दिन में, 1 मंथ में, 2 मंथ में मैं नहीं बना सकता, नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता. I can't buy the entire plant and machinery within a short run. But over a period of time, yes, we can build a new factory building. We can build we can buy a new plant and machinery. We can buy a new classroom. शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास बिल्डिंग है उसमें ही हम एडजस्ट करेंगे, उसको ही हम कुछ राइट उसमें ऐसे कोई चेंजेस करेंगे जिससे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो. सो ऑल दोज इनपुट्स व्हिच कैन बी इजीली चेंज्ड, अगर इंक्रीज करने पड़ते तो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करने पड़ते तो डिक्रीज भी कर सकते हैं इजीली. अगर वैसे है तो उनको बोला जाता है वेरिएबल इनपुट्स. लेबर इज ए वेरिएबल इनपुट. इफ देयर इज अ मोर डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट एंड यू नीड टू प्रोड्यूस मोर, राइट, you need to produce more, you can hire more labor. It is possible in the short run. You can increase the number of labor workers, definitely. You want to produce more, you can buy more raw material. That is possible. You can buy more raw material, definitely. But you cannot construct a new building in a short run. So building plant and machinery, top management, you don't change top management on day to day basis. हम डेली बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट चेंज नहीं करते. Because top management is a like fixed factor. उनमें चेंजेस इजीली नहीं आते. बट जो डे टू डे लेबर है, कैजुअल लेबर से, उनमें डेली चेंजेस आते हैं. या वी कैन मेक द चेंजेस. एग्जाम्पल, रतन टाटा की रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए दे टुक 5 to 6 years. Still they didn't get the proper replacement. So try to understand that is a fixed factor. बट जो नॉर्मल एम्प्लॉइज है, जो आते जाते रहते हैं,
दे आर वेरिएबल फैक्टर्स, दे आर डूइंग सम प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन करे या सर्विस दे रहे, जो कुछ भी है, सर्विस इज आल्सो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. So the Ratan Tata and his top management team is a fixed factor. It does not change on daily basis. It does not require adjustment in them on daily basis. That is appointed for a long-term period. On the contrary, right, the day-to-day labor, the normal employees are variable in the nature. Join करेंगे और छोड़ेंगे, उनको फर्क भी नहीं पड़ता उससे. Try to understand. So such factors which are adjusted on daily basis or which can be adjusted on daily basis are called as variable factors. So example में लिख लेना, right? Let me share my screen. I just checked my WhatsApp, तो बच्चे उस पर चैटिंग कर रहे हैं. तो क्या फायदा है आपका क्लास में रहने का? रिजल्ट टेकल मैंने देखा किसी ने डाला है, वो साहिल शाह. वो साहिल शाह तो पागल है, उसके पीछे लगोगे तो आप भी पागल हो जाओगे. सो फोकस होना चाहिए. अब ये रिजल्ट से बात आई है, you won't believe, 8th, I still remember the date, 8th June 2008, 8th June 2008, जाके चेक करो, संडे. 8th June 2008 was my CPT एग्जाम. मेरी CPT की एग्जाम थी, आप फाउंडेशन है, पहले CPT थी. 7th June 2008 को मेरा 12th रिजल्ट था, सैटरडे था. नेक्स्ट डे मेरी CPT की एग्जाम थी. मैं पूरे दिन रिजल्ट भी चेक नहीं किया. मेरा रिजल्ट एग्जाम होने के बाद, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था. समटाइम्स नॉट हैविंग मोबाइल इज गुड थिंग. या जितना डिटैच रह सकते हो उन चीजों से उतना बेटर होता है. तो 7th को मेरा रिजल्ट था 12th का, एंड 8th को मेरी CPT की एग्जाम थी. जाके चेक करो, 8 जून 2008. 8 जून में मैंने CPT दी, 8 में 2008 में, 2010 में इंटर, 2012 में CA फाइनल, किस्सा खत्म. 4 साल में निकाल दिया. सो नेक्स्ट डे मेरी 12th का आज 12th का रिजल्ट है, नेक्स्ट डे मेरी एग्जाम थी. मैंने रिजल्ट है इसे समझा ही नहीं. आई केप्ट ऑन स्टडीइंग. मैं हॉस्टल में था, लॉक करके लिया था. सो नो वन विल आस्क मी व्हाट इज योर रिजल्ट. जिसको पता भी चले तो वो भी मुझे बोलेगा नहीं. मेरे एग्जाम हो गई, सब हो गया. नेक्स्ट डे मैंने 7-8 बजे घर में फोन किया. उनको लगा इसको पेपर डिफिकल्ट गया होगा, इसलिए इसने फोन ही नहीं किया. बिकॉज घर पे वो कंसेप्शन था कि सी इज वेरी डिफिकल्ट, जो मैंने पूरा निकाल दिया कि नहीं डिफिकल्ट नहीं. उनको मुझे देख के बाद में उनको लगने लगा कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर पढ़ाई करोगे रेगुलरली तो हो जाएगा. बिकॉज मैं बहुत रिलैक्स रहता था, पढ़ाई करता था लेकिन टेंशन नहीं. टेंशन के साथ पढ़ाई कभी नहीं होती. तो जो मैंने 7-8 बजे फोन किया तो घर वालों को लगा कि पेपर डिफिकल्ट गया होगा, इसलिए फोन नहीं किया. मैंने फोन किया. क्या पेपर के बाद मेरा एसपी कॉलेज में सेंटर था, तो सब दोस्त उधर आए थे पेपर के बाद. तो हम लोग उधर से ही घूमने गए, इधर उधर FC रोड वगैरह टाइम पास किया. और 8 बजे याद आया, घर वालों को बोलना चाहिए ना पेपर गया. तो मैंने घर वालों को फोन किया, दोस्त का फोन ले गए, उसके पास मोबाइल था. तो मैंने बोला कि, उन्होंने बोला कैसे गया पेपर वगैरह ऐसे वैसे. मैंने बोला कि पेपर अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पास हो जाऊंगा. रिजल्ट क्या लगा? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय पेरेंट्स से ये रिजल्ट है तेरा. और फिर नेक्स्ट डे मैं गया कॉलेज में, रिजल्ट लिया और FY का फॉर्म भर दिया. उसके नेक्स्ट डे हमारी गोवा ट्रिप भी थी क्लास की. तो हम गोवा जाने वाले थे इवनिंग में. तो वो मंडे पूरा कॉलेज का एडमिशन की प्रोसेस कर दी, रिजल्ट लेके, और चले गए हम लोग. सो व्हाट आई सिंपली मीन, फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार. अब पेपर देखो, रिजल्ट क्या लगेगा जिस दिन पेपर लिखे उस दिन ही आपको पता है. तो टेंशन नहीं लेने का. टेंशन पेपर के पहले लेना है, पेपर के बाद नहीं. और अगर पेपर के बाद टेंशन ले रहे हैं मतलब आप पेपर के पहले कुछ नहीं किए. सो फैक्टर्स, राइट,
मैंने बोला फिक्स फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन. एग्जाम्पल, 2 दिन में आपके एग्जाम है, 2 दिन में आपके एग्जाम है, आप कितना पहले कुछ नहीं किया तो इट इज अ फिक्स, यू कैन नॉट चेंज. बट अगर आपके पास पूरे 2-3 मंथ है, यू कैन प्रिपेयर, यू कैन वर्क मोर, आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे पढ़ाई में, ज्यादा कम टाइम पास करोगे, यू कैन चेंज इट, देन आई कैन से इट इज अ वेरिएबल. बट आपके पास राइट 24 आवर्स से ज्यादा तो किसके पास भी टाइम नहीं है डेली बेसिस पे. समझ में आ रहा है? तो टाइम इज अ फिक्स्ड, ऐसे बोल के चलो. You cannot change the factors which cannot be changed on daily basis or which are not changed on the daily basis. वो possible भी नहीं है and there is no point in changing them on daily basis are fixed factors, and the factors which can be easily or quickly adjusted or changed in day-to-day activities in short run is called as which right your variable factors. Next लिख लेना, this is the first. Second लिख लेना, ठीक है. Example, land and building. जनरली वी परचेस लैंड एंड बिल्डिंग फॉर लॉन्ग रन. हम डेली बेसिस पे परचेस नहीं करते या डेली बेसिस पे चेंज नहीं करते. अगर वो करना है तो इट इज योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन. लैंड एंड बिल्डिंग, मैं खाली इतना ही कवर करने वाला हूं, ज्यादा नहीं. लैंड एंड बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है. देन आई कैन से टॉप मैनेजमेंट. They are your inputs, they are factors of production, but you don't alter them on day to day basis. अगर उनमें changes लाने तो you require long run, you require long period of time, so they become your fixed factors, ठीक है. And the second यहाँ पे लिख लेना, raw material, ठीक है, labor, consumables, etc. are variable in the nature. You want to produce more, प्रोड्यूस मोर, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है, बाय मोर रॉ मटेरियल, हायर मोर लेबर. You want a less raw material, you have less demand, you don't want to produce, buy less raw material, hire less labor, निकाल दो. That is possible. You can alter it easily, quickly. Quick adjustment possible है. जिनमें quick adjustment possible है in short period of time, उनको हम बोलते हैं they are my variable factors. Variable, मैं उनको change कर सकता हूँ easily. Number 3, ठीक है. Number 3, fix, obviously factors of production comes with a cost. वो फ्री में तो नहीं आते, they comes with a cost. Try to understand. इसलिए फिक्स फैक्टर की कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट. दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. यू कैन नॉट एस्केप दिस कॉस्ट. लाइक एग्जांपल, सपोज अपने क्लासेस रेंट पे, अभी हम वहां पे क्लासेस नहीं ले रहे, फिर भी हमें रेंट पे करना है. इट इज आवर फिक्स फैक्टर. वो फैक्टर हमारा फिक्स फैक्टर है, तो हमें उसको उसके एक्सपेंस, उसकी कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी. समझ में आ रहा है? जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो परमानेंट बेसिस पे, तो उनकी तो कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी. जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सैलरी देनी पड़ेगी. आई कैन नॉट एस्केप दैट कॉस्ट. सो दैट इज फिक्स कॉस्ट. फिक्स फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, एंड जो वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट होती है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं. वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. देन आउटपुट. फिक्स फैक्टर्स are not altered with output. Variable factors are altered, changed, varied to change the output.
means you want to produce more, buy more raw material, hire more labor. So you can change variable output and you can change the output. Means fixed factors are not changed with the output. एग्जाम्पल हम क्लासेस में लेक्चर नहीं ले रहे, एज सच वहां पे हमारा आउटपुट 0 है, फिर भी वो फिक्स फैक्टर्स है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट जब क्लासेस होते थे तब हम पानी वगैरह परचेस करते थे, बॉटल्स वगैरह बच्चों के लिए. अब उसकी जरूरत नहीं, वी आर नॉट बाइंग दैट. हमने नहीं बोला है, रेंट तो पे करना पड़ रहा है हमें. वो क्लासरूम है, लेक्चर्स हो या ना हो, क्लासरूम तो है. बट नाउ वी आर नॉट बाइंग द लाइक बाकी जो चीजें लाइक वाटर बॉटल्स वगैरह जो हम परचेस करते थे, उसकी अब जरूरत नहीं है. अगर क्लासेस होते तो हमें सैनिटाइजर्स परचेस करने पड़ते, अब उसकी जरूरत नहीं है. वो जो क्लीनिंग मटेरियल होता था वो परचेस करते थे, अब भी जरूरत नहीं उसकी, अभी हमने वो परचेस करना बंद किया है. तो जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा, बट क्लासरूम रिमेन्स एज इट इज. क्लासेस हो या ना हो, एक लेक्चर हो या 10 लेक्चर हो, फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स एज इट इज. बट जैसे नंबर ऑफ लेक्चर्स इंक्रीज होते हैं तो वेरिएबल इनपुट्स भी इंक्रीज होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वेरिएबल इनपुट्स चेंजेस विद द आउटपुट, फिक्स फैक्टर्स डू नॉट चेंज विद द आउटपुट. आउटपुट 0 भी होगा तो भी फिक्स फैक्टर्स रहेंगे. समझ में आ रहा है? एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फिक्स फैक्टर इज फिक्स कॉस्ट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल फैक्टर इज वेरिएबल कॉस्ट. ये लिख लेना एंड देन इट इज डन. सो फिक्स फैक्टर के साथ फिक्स फैक्टर्स, आउटपुट डज नॉट चेंजेस विद द फिक्स फैक्टर इन द शॉर्ट रन. आउटपुट चेंजेस विद द वेरिएबल फैक्टर्स. अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो फॉर द टाइम बिंग आप क्या करो, परचेस मोर एंड मोर ऑफ योर रॉ मटेरियल, हायर मोर एंड मोर ऑफ लेबर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक एग्जांपल, देयर आर मेनी लाइक IT firms who had asked their employees to not to join. समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को निकाल भी दिया है, दैट इज द रियलिटी. तो इन दैट केस, बट उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो वैसे के वैसे दे आर फिक्स फैक्टर्स. बट जिनको वो निकाल, वो लेबर या जो वर्कर्स है या जो एम्प्लॉइज है, आई विल से दे आर वेरिएबल. जब जरूरत पड़ेगी तब उनको लेंगे. शुगर फैक्ट्रीज में सीजनल बिजनेस है. जब सीजन आता है तो लेबर्स को लेते हैं, सीजन हो गया लेबर को निकाल देते हैं, वेरिएबल है. बट जो शुगर फैक्ट्री एज सच है, वो जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, जो मशीनरीज है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होंगे. उनका टॉप मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा, उनकी बिल्डिंग चेंज नहीं होगी, वो वैसे के वैसे रहेगी. दैट इज अ फिक्स फैक्टर. फिर अगर एक दो साल बारिश नहीं हुई तो पूरी की पूरी शुगर फैक्ट्री बंद रहेगी, बट आउटपुट 0 है, बट फिक्स फैक्टर्स है. आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं करोगे, आप लेबर हायर नहीं करोगे, आप उनको बोलोगे आप घर पे रहो, वी कैन नॉट अफोर्ड इट. सो द फैक्टर्स, अगर आपको ज्यादा शुगर केन है आपके एरिया में, अच्छी बारिश हुई है, तो आप यू विल हायर मोर एंड मोर लेबर, यू विल हायर बाय मोर एंड मोर रॉ मटेरियल, यू विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट. आप डबल शिफ्ट करोगे, आप ट्रिपल शिफ्ट करोगे, वही फिक्स एसेट को आप अच्छी तरह से यूज करोगे, 100% यूटिलाइज करने का ट्राई करोगे. बट अगर ऑफ सीजन है, इतना अच्छा नहीं है, तो यू विल डू ओनली वन शिफ्ट. एक शिफ्ट में आप 100% कैपेसिटी यूज नहीं करोगे, आप 50-60% ही कैपेसिटी यूज करोगे. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फिक्स फैक्टर के केस में हम कैपेसिटी देखते हैं, कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी यूज हो रही है. एंड वेरिएबल के केस में वो कैपेसिटी यूज करने के लिए, फिक्स एसेट की कैपेसिटी यूज करने के लिए, अगर हमें ज्यादा कैपेसिटी यूज करनी है, 100% कैपेसिटी फिक्स फैक्टर्स की, 100, कोई भी फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी 100 होगी, 100%. अगर हम अभी 80%, अगर हम 60% पे काम कर रहे हैं, हमें 80% पे काम करना है, तो वी नीड मोर लेबर, वी नीड मोर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. सो ये जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है. फिक्स फैक्टर्स रिमेन्स एज इट इज. हमें उसको 40% पे काम करना है, तो वी विल ले ऑफ लेबर, वी विल बाय लेस रॉ मटेरियल, वी विल नॉट बाय इनपुट्स, बाकी इनपुट्स, we will decrease the production. Variable factors changes with the output, fixed factors do not change with the output. ये याद रखना, ठीक है? So this is the difference between the variable factors and fixed factors. कल हम short run and long run इसको ही continue करेंगे, right? इस और time period को हम short run and long run में divide करेंगे. And from tomorrow we will be starting with the
प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, थैंक यू। कल मेरा लेक्चर होगा, 1 बजे रिजल्ट है, कोई कुछ नहीं होता है, 12:30 तक तो मैं कम से कम लेक्चर ले लूंगा। ठीक है, अकाउंट्स का। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर रिजल्ट्स। साहिल तो है, मुझे लगा तू नहीं है। ठीक है, बहुत गालियां दी मैंने तुझे।